مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. ہائے آپ سب کو سلام. That's good. ہم زندہ خدا کے زندہ لوگ ہیں. ہاللیلویا. ہم زندہ خدا کے زندہ لوگ ہیں. Hallelujah. First of all, I would like to thank you, Pastor Boyce, اس opportunity کے لیے. Thank you so much. آپ کے لیے, آپ کی کمیٹی کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے. ورشپ بہت اچھی ہوئی. خداوند آپ کو بھائیوں اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. بہن آپ کی دعا میں روح القدس کا مسا اور پتہ چل رہا تھا کہ خدا کی بڑی دعا کر رہی ہے. Eric, thank you so much for introducing me here. Eric مجھے کہہ رہا تھا کہ تجھے لگ رہا ہوگا تو گھر آ گیا. میں نے بتا ہاں کچھ ایسی گل دی ہے. پنجابی کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. And I think the young ones, maybe you guys don't understand Punjabi? No. They don't. That's okay. بیٹھے رہو پھر. ہمیں ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے. بھائی نے جب پریزائڈنگ کر رہے تھے ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو. اور جب ہماری زندگیوں میں شکر گزاری ہوتی ہے تو پھر مسکراہٹ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. ہمیں کیونکہ ہم مشکلات میں بھی کہتے ہیں خدا ان تیرا شکر. ہاللیلویا. اور خداوند کی بادشاہت کی جو ایک کنجی ہے یا ایک اصول کہہ لیں وہ شکر گزاری بھی ہے. جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری سے وہ کام جو نہیں ہوئے ہوتے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شکر گزاری کے وسیلہ سے خدا حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ایسے حالات ایسی چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بدل سکتی ہیں خدا معجزانہ طور سے ان کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. کتنوں کو یہ آتا ہے گیت میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. بغیر میوزک کے آنکھیں بند کر کے جسٹ ایک لائن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سوا. So let's everyone close our eyes, especially the young ones. Let's close our eyes, yeah, and ask the Holy Spirit to come and speak to us. And I believe that He will come and He will speak to you guys. I promise you that. But the condition is you need to ask Him. That's the problem. The biggest problem young people have today is they do not understand because they do not ask. Ask and it shall be given unto you. Amen. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. دے اپنی حضوری دے اپنا مسا. Yes, Father God, we just want to honor you and glorify your name on high. Father, I want to thank you for your presence here right now. Holy Spirit, I commit myself in your hands. And I ask you to speak to me and your people. Father, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں تیرے نام کی حمد کرتا ہوں اس وقت. ہے باپ تو یہاں پر موجود ہے. پاک روح ہر ایک زندگی سے مجھ سے اور ہر ایک آئی ہوئی زندگی سے تو آج کلام کرنا ہے خداوند پاک خدا. آج ہے خداوند تشنا لب ہے خداوند پاک خدا تیرے کلام سے ہے خداوند تیرے کلام کے پانی سے ہے خداوند تر ہو جائیں. اے خداوند آج بھوکی زندگیاں یسوع کے نام سے سیر ہو جائیں. اے باپ میری زبان کا ذمہ لے اے خداوند یسوع کے نام سے اپنے آلٹر سے سلگتا ہوا کوئلہ میری زبان پر رکھے خدا تاکہ میرے منہ سے صرف وہ باتیں نکلیں جو تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے خداوند تجھے جلال دینے کا سبب بنے. باپ یسوع کے نام سے میرے ہونٹوں کی تقدیس کرے. باپ مسیح خداوند کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. آج کا جو ہمارا عنوان اور جو تلاوت کی گئی تھی وہ متی کی انجیل اس کے 3 باب سے لی گئی تھی. اور اس کے اندر ہمیں یوحنا
रसूल का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र है? यूहन्ना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करता, यूहन्ना उससे पहले यीशु के आने की राह तैयार करने के लिए आया था, लोगों को पैगाम देने के लिए आया था। और उसका जो पैगाम था वो बहुत ही सादा सा था। मैं हमेशा ये अपने चर्च में कहता हूं कि हम सादा से लोग हैं और वो बड़ी सादगी से हमसे कलाम करता है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि सादगी के साथ उसके कलाम को बयान किया जाए। मेरी जो माँ थी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो मैं हमेशा जहन में रखता था कि मैं वो बातें करूंगा जो मेरी माँ को भी समझ आ जाएंगी। मैं ग्रीक ते हिब्रू चाड़ धर्म, उसके लिए कॉलेजेस बने हुए हैं, उसके लिए स्पेशल बाइबल क्लासेस हैं जहां हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कलीसियाई तौर पे मुझे पता है कि आज अगर खुदा मुझे यहाँ लेकर आया है तो आई एम नॉट हियर बाय एक्सीडेंट, आई कैन अश्योर यू दैट। क्योंकि मुझे जुमेरात से पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पे भाई बॉयज एग्जिस्ट करते हैं। बहन अमरीन, अंबर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। अगर मैं आज आपके दरमियान में मौजूद हूँ तो ये खुदावंद के लोगों की वजह से है, और खुदावंद खुद से आपसे हम कलाम है। लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, और वो मौजूद है। The condition is, do you have faith? It says in the scripture, where 2 or 3 are gathered in my name, I'm in their midst, right? The condition is, do we believe that he's in our midst? It's all about belief that he's here. And young people, I can assure you that he's here right now. And if you want to ask him, Lord, I want to feel you, guess what? He will show himself to you guys, definitely. मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने खुदा पे। मैं तो चैलेंज करके लोगों को कहता था, स्पेशली वो लोग जो एथियस्ट हैं, उनको मैं चैलेंज देकर ऑस्ट्रेलिया में कहता हूँ, do you want to feel God exists right here, right now? कभी आपने चैलेंज किया किसी एथियस्ट को? उनका तो ईमान ही नहीं है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरा ईमान इतना बड़ा है क्योंकि मेरा खुदा एग्जिस्ट करता है। वो जिसने बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए, वो जिसने मूसा के लिए नाउमीदी से उम्मीद को पैदा कर दिया, वो जिसने अंधों की आंखें खोल दी। शुक्रगुजारी बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगियों के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसका एक ही मैसेज था, और वो पैगाम ये था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। वो बपतिस्मा देता था गुनाहों की माफी के लिए और कहता था पहला तौबा करो फिर बपतिस्मा लो, गुनाहों की माफी हो जाएगी। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तालीम थी और उसका मैसेज था। और फिर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह का पैगाम आपको पता क्या था? 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि यूहन्ना जो पैगाम दे रहा है वो ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। जब आप 4 बाब का मुताला करते हैं तो 4 बाब के आखिर में जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करता है तो यीशु मसीह उसमें क्या कहता है? आयत है 23वीं आयत में लिखा हुआ है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता। वाओ! यूहन्ना का पैगाम, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। यीशु मसीह का पैगाम, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। और एक जगह पे तो यीशु ने यह भी अपने शागिर्दों से कहा कि बादशाहत नेर नहीं है, आएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे भी दरमियान में है। हालेलुया! बादशाहत तुम्हारे दरमियान में है। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि यीशु क्या है, हमारा खुदावंद क्या है? वो बादशाहों का बादशाह। तो इसका मतलब है जहां वो आ जाता है वहां उसका तख्त लग जाता है और उसकी बादशाही शुरू हो जाती है। आसमान और जमीन को बनाने वाला कौन है? यीशु। सारा उसी का है ना। इसका मतलब है कि ये सब कुछ उसी का है। जब वो आ जाता है, जब बादशाह हमारे बीच में आ जाता है तो उसकी बादशाहत कायम हो जाती है। आमीन, आमीन। लेकिन
खुदा की बादशाहत में होने के बावजूद हम मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफों और तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी रहते हैं। वो उसकी बादशाहत में ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना, क्यों ऐसा? होनी तो नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हैं। जब वो आसमान को छोड़ के, अपने जलाल को छोड़कर इस रुए जमीन पर आ गया, तो लिखा हुआ है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। तो अगर कामिल इंसान था तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम इस दुनिया में रहते हैं उसी तरह वो रहा, उसी तरह उसकी परवरिश हुई, उसी तरह वो खाना खाता था जिस तरह हम खाना खाते हैं, उसी तरह जिस तरह हमें कहा गया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, वो भी अपने माँ बाप की इज्जत करता था। 3 साल सिर्फ खिदमत की है। कितने साल की है? 3 साल। 3 साल 10% अपनी जिंदगी का सिर्फ उसने खिदमत की है। 30 साल थी ना, 30 का 10 निकाल लो, कितना बनता है? 3 ही बनते हैं। 10%। लेकिन उस खिदमत के अंदर उसने ऐसे काम कर दिए जो आज तक नहीं कर पाया कोई। मुर्दों को जिंदा नहीं कोई कर पाया इस तरह जिस तरह यीशु मसीह ने किया। उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। आज तक कोई ये काम नहीं कर पाया जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। वो जुदाई जो बागे अदन में हुई, उस जुदाई को खत्म भी किसने किया? यीशु मसीह ने किया, अपनी सलीब के वसीला से। आमीन, आमीन। अच्छा, मैंने आगे एक बात कही है कि उसकी बादशाहत के बावजूद हम अच्छे दिन नहीं देख पाते। ऐसे ही है ना? अगर हकीकत को देखा जाए तो मुसीबतें, तंगी, मुश्किलात हमेशा रहती हैं। Would you agree with me? ठीक है कि हम एक तरफ कहते हैं कि उसकी बादशाहत है और दूसरी तरफ हमें मुसीबतें घेरे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? मैंने खुदावंद से रो रो के दुआ की। मैंने कहा, खुदावंद, मेरे कौम के मसाइल कब हल होंगे? कब हमारे हालात बदलेंगे? कब? किसी को पता है कब बदलेंगे? कब खुशहाली हमारे खानदानों में, हमारी कौम में आएगी? किसी को पता है? जब हम मुसलमान पे चले जाएंगे। ये भी है, उससे पहले भी आ सकती है, और इसका सबूत मैं कलाम मुकद्दस में से ही दूंगा जो खुदा ने मुझे बात बताई। आज का पैगाम मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 चीज़ों को आपने लेके जाना घर, बड़ी सादगी के साथ। मैंने दुआ की और खुदा ने मुझसे कहा कि तू जहाँ जाएगा तूने ये कलाम सुनाना है, बिकॉज मैं अपने लोगों के हालात को बदलना चाहता हूँ। मैं खुशहाली इनको देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है खुदावंद दे। मैंने कहा कोई मुकाशफा खोलेगा, ऊपर से आएगा? उसने कहा नहीं, कलाम मुकद्दस में देख। अच्छा, कहाँ देखा? उसने कहा पतरस, पासा पहुंच गए होंगे, पहला पतरस 3 बाब। पहला पतरस 3 बाब उसकी 8वीं आयत में से मैं शुरू करूंगा। लिखा हुआ है, ये बादशाहत का असूल है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूं, और अगर आप इस असूल के तहत उसकी बादशाहत में नहीं हैं तो खज्जल ख्वार होंदे रवांगे, और अगर इस असूल के तहत जिंदगी गुजारेंगे तो तर जाएंगे। सीरियसली लिखा हुआ है 8वीं आयत, गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द हो जाओ। दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। हमें एक दिल रहना है और हमदर्द रहना है, ठीक है? फिर उसके बाद बरादराना मोहब्बत रखो। हाय, यही तो रखी नहीं जाती। नरम दिल और फरोतन बनो। यदि एक्टिंग असी बड़ी अच्छे तरीके ना कर लेने हैं। बदी के एवज बदी ना, तो तू एक मारी मैं तेने 2 मारांगा, तू गाल कड्डी है मैं तेने चंड मारांगा। बदी के एवज बदी, ये खुदा की बादशाहत का असूल है। ये उसके असूल पढ़ रहा हूं मैं।
ठीक है, बदी के इवज बदी ना कर और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरअक्स क्या करो, बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए, वाओ, बरकत के वारिस। अब विरसे में क्या दोगे आप? विरसे में अगर बरकत दोगे तो बरकत होगी, तो बरकत दोगे ना, क्यों बात साहब? मैं नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस कह रहा है हम तो बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि वी शुड इनहेरिट द ब्लेसिंग्स, वी आर कॉल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। और जो इनहेरिट होगा, जो हमारे पास होगा, वही तो दवांगे। जो कुछ होगा वही बांटेंगे ना। मोहब्बत होगी तो मोहब्बत बांटेंगे, कड़वाहट होगी तो कड़वाहट बांटेंगे। ऐसे ही कलाम मुकद्दस से कहता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, हाय, ये इंपॉर्टेंट है, आई लव दिस, लिखा हुआ है, जो कोई जिंदगी से खुश होना, हाय 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 हाय, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। तेरी खैर हो जाए। बादशाहत में रहना है तो ये प्रिंसिपल है बादशाहत का, किंगडम ऑफ गॉड। उसकी बादशाहत में ये असूल हैं जिनके तहत हमें ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर इनके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हमें मुश्किलात नहीं लगेंगी। सीरियसली, हमारी अपनी मुश्किलात इस दुनिया के अंदर जो है वो हमें मुश्किलात नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारे अंदर शुक्रगुजारी का रवैया होगा। अगर हम बादशाहत के असूलों के तहत जिंदगी इस दुनिया में गुजार रहे हैं। आप सोचते होंगे कि हम मुश्किलात में कैसे शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मुश्किलात में, मुसीबत में, तंगी में हम कैसे शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मैं माओं से दरख्वास्त करना चाहता हूं, आज आप अपने घरों में एक नमूना हैं, याद रखिएगा। मुझे याद है, मैं तकरीबन 8 साल का था। मेरे वालिद साहब घरों मुल्क काम करते थे, जैसा पाकिस्तान में होता है। चले गए बाहर, सऊदीया, इराक। मेरे डैड इराक में थे, सऊदीया में थे, फिर वापस आ गए। वो बीमार हो गए और अम्मी बहुत अच्छी थी चीज़ों को मैनेज करने में। अम्मी ने कुछ सोना बना लिया, बैंक में पैसे जमा कर लिए। जब अब्बू वापस आए तो वो 7th डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बीमार हो गए। सारा पैसा उनकी बीमारी पे लग गया, सारा जेवर बिक गया। 8 साल की उम्र में हम 4 भाई, एक छोटी बहन। क्रिसमस आ गया और दिसंबर में क्या हुआ, अब्बू को हॉस्पिटल से रिलीज मिल गया, घर आ गए। हालात इस कदर खराब हो गए, मैं आपको बता नहीं सकता। गरीब तो गरीब पाकिस्तान दे विच नए कपड़े हम जरूर मैनेज कर लेते हैं। ऐसा ही है ना, हमने देखा होगा मोहल्लों में, इलाकों में, देहातों में, ठीक है, कि गरीब से गरीब खानदान का जो बच्चा है वो नए कपड़े जरूर पहनता है। और घरों में आम दिनों में मुर्गी बने या ना बने, उस दिन मुर्गी लाजमी बांधती है। ऐसा ही है, सही कह रहा हूं ना, कि भले गरीब हो मुर्गी लाजमी बननी है। मुझे याद है उस वक्त क्या हुआ, ना तो नए कपड़े लिए हमने और ना ही घर में मुर्गी बनी। घर में पता है क्या बने, मुझे आज भी याद है, दाल और चावल, क्रिसमस वाले दिन। और मैंने दरवाजा खोला अपनी गली का, मैं बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि गली के सारे बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और वो नए कपड़े पहन के जा रहे हैं और वो कह रहे राजा सी चूल्हे लैन चले। और मेरा दिल इतना दुखा, मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने कहा सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं। दरवाजा बंद करके मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने अपनी मां को घुटनों के बल देखा।
मैंने अपनी माँ को घुटनों के बल देखा और पादरी साहब वो पता क्या दुआ कर रही हैं? वो दुआ करे, खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूं इन हालात के लिए। और मैं देख रहा हूं खड़ा होके, हैं केड़े हालात में, और मैं देख रहा हूं और मैं हैरान हो रहा हूं, लेकिन मेरी मां के लफ्ज मेरे जहन में, मेरे दिल में एक मोहर छोड़ रहे हैं, एक छाप लगा रहे हैं। मेरी मां मुझे सिखा क्या रही? वो इसलिए नहीं कह रही कि मैं वहां पे था या दूसरे बहन भाई थे वहां पे, नहीं, क्योंकि मेरी मां खुदा परस्त थी, वुमेन ऑफ फेथ, मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी मां, मेरी इंटरसेसर थी मेरी मां। अब मैं 8 साल की उम्र में मैं देख रहा हूं, कह रहा खुदावंद मैं इन हालात के लिए तेरा शुक्र करती हूं और उन आने वाले हालात के लिए भी मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं। वाह! और मैं देख रहा हूं मुश्किलात में शुक्रगुजारी बादशाहत के असूलों में से एक असूल है, और वो मौजज़ाना तौर से हमारे हालात को बदलने की कुदरत रखता है। जब मैं बड़ा हुआ, 18 साल का भी नहीं था, खुदा ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का दरवाजा खोल दिया। मैंने अपनी 18वीं सालगिरह जाके मैंने ऑस्ट्रेलिया में मनाई। मैंने वहां पे तालीम हासिल की, अच्छी नौकरी मिल गई, अपना कारोबार शुरू कर लिया, और कारोबार इतना फ्लोरिश हुआ कि मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर सोचते थे कि अब हम हेलीकॉप्टर लेंगे। दाल चावल, कोई कपड़े ही नहीं, वहां से जर्नी का आगाज होता है वहां तक कि यार अब हेलीकॉप्टर लेना चाहिए। ये सिर्फ खुदा कर सकता है, और ये मैं अपनी वड्डोगिरी के लिए नहीं बता रहा, ये मैं सिर्फ उसके जलाल के लिए बता रहा हूं। हालेलुया! सिर्फ उसके जलाल के लिए कि वो हमारे हालात को बदलने की कुदरत रखता है। पतरस, पहला पतरस 3 बाब, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, तो अपने लबों पे फरिश्तों का पहरा लगा दें। जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां ना बोलें, ना बोलें। अगर खुशियां देखनी है, हम अपनी खुशियों के कातिल खुद होते हैं। अपनी बरकत को हमने अपने हाथों से रोका होता है। ऐसे करके जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे, अच्छे दिन देखना चाहे, वो अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर हम जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, मेरी माँ उस वक्त खुदा को, क्या लफ्ज है, कुड़ सकती थी। हाय मैं ते तेरे नाल चलदी रही ते आ मेरे हालात वेख, मेरे बच्चों को कपड़े भी नहीं लैके दिते, अज दाल चावल बने ने। वो कुड़ी नहीं है। कुड़ना और बुड़बुड़ाना, याद रखिएगा, ध्यान से सुने। कुड़ना और बुड़बुड़ाना हमारी बरकत को हमसे छीन लेता है। कुड़ना और बुड़बुड़ाना हमारी बरकत को हमसे छीन लेता है। जिंदा मिसाल कौम बने इस्राएल, 40 दिन का सफर 40 सालों में बदल गया उनके कुड़ने और बुड़बुड़ाने की वजह से। आज हम कहां खड़े हुए हैं? क्या हमारे रवैया किंगडम ऑफ गॉड, क्या बादशाह के असूलों के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम कुड़ते हैं, बुड़बुड़ाते हैं? जब हम कुड़ते बुड़बुड़ाते हैं तो क्या होता है कि वो बरकत जो उसने हमें 10 दिन में देनी होती है वो 10 साल लग जाते हैं। खुदा की बादशाहत का प्रिंसिपल है कुड़ना और बुड़बुड़ाना बंद करो।
मैं इतनी दूर से एम ही नहीं आया, मुझे खुदा लेकर आया है, मुझे खुदा लेकर आया है। मैंने कहा था मैं कहीं भी जाता हूं मैं एम ही नहीं मुंह चौक के टुर जाता। मुझे मुल्क घूमने का शौक नहीं है, मैं 60 से ज्यादा मुल्कों में घूमा हुआ हूं। एक वक्त आया खुदा ने मुझसे कहा अपना कारोबार छाड़ दे, हो बेच दे और मेरी खिदमत कर। अब यकीन माने मैंने पता क्या किया, मैंने सर पे हाथ रखा और मैंने कहा शैतान यीशु के नाम से दूर रह। गुर्बत से तूने उठाया हमें, इस मकाम पे ले आया कि मैं सोचता ही नहीं था हदिया देते हुए। सीरियसली अगर खुदा ने कह दिया ना, ये प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं अपनी वड्डोगिरी कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये खुदा के जलाल के लिए बता रहा हूं कि खुदा हमें घुरे से उठा के तख्त पे बिठाने की कुदरत रखता है और उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ी है। बातें करना, कलाम में से दूसरे लोगों की गवाहियां दे देना, लेकिन खुद उस बात का तजर्बा करना, दो फर्क चीजें हैं। मेरे खानदान ने तजर्बा किया है कि उसने हमें घुरे से निकाला और अपने साथ तख्त पे बिठा लिया, क्योंकि मेरा खानदान बादशाहत के असूलों के मुताबिक चलता रहा। मुसीबत, तंगी, दुख, तकलीफ में शुक्रगुजारी करता रहा। शुक्रगुजारी चाबी है, कुंजी है। मुंह से बुड़बुड़ाने की बजाय शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। जहां तक हो सके मेल मिलाप रखें, जहां तक हो सकता है, लेकिन दिल में कदूरत ना रखें, दिल को साफ रखें। आप यकीन माने अगर किसी के साथ मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती मैं माफी मांग लेता हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक और बात सिखाई थी, कहती माफी मंगना कोई छोटा नहीं हो जाता, माफी रिश्तों को बहाल करती है। हालेलुया। और मैंने वो चीजें बांधी हुई है, लिखा हुआ ना कि अपनी माँ की तालीम को फरामोश ना कर। तो I would like to ask the young people, listen to me. If your mother is giving you good advice, follow it, because that's the principle of the scriptures. And once you follow it, you will see the blessings will follow you. Remember this. There are 365 promises in the Word of God. 365 promises. And there are 2 promises which had condition attached to them. Only 2 promises. 1, honor the mother and father, and you shall live longer. Right? Yeah. Do that and you will see. You will experience His goodness in your lifetime. Honor your mother and father. Okay, maybe one thing, listen carefully. Your mom or your dad, maybe they are not always right. Remember this. Your mom and dad, maybe they are not always right, but that does not give you the opportunity to disrespect them. हमारे माँ बाप हो सकता है कि कम तालीम की वजह से वो ठीक ना बोल रहे हों, ठीक है, लेकिन उनका अगर वो ठीक नहीं कह रहे तो हमें उनका ठीक ना होना हमें बदतमीजी की इजाजत नहीं देता। Remember that. याद रखें कि उनका ठीक ना होना हमें बदतमीजी की इजाजत नहीं देता। हमने फिर भी उनकी क्या करनी है? इज्जत, खामोशी के साथ। हमारे बहन भाइयों के बारे में मिसाल दी जाती, कहते हैं ना कि अम्मा जो कुछ कहती है वो बोल दो नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें पता है कि इनकी दुआओं की वजह से आज जो हम वो हैं। खुदा ने मुझे कहा अपना बिजनेस बेच दे, खिदमत में आ जा। मैंने बेच बाज के सारा कुछ मिशन पे लगा दिया। एंड अब ईमान से जिंदा हूं मैं, सच कह रहा हूं। मैंने कहा खुदा मेरे पास तो बहुत था, मैं तो दूसरे को देना सा, मैं तुझे को मांगागा। दान तुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और जिस दिन से मैंने अपना बिजनेस बेचा है, सारा कुछ खिदमत पे लगा दिया, वो दिन आज का दिन खुदा ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। जोर दे बजाता है।
Kingdom of God, खुदा की बादशाहत के कुछ असूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत, तौबा is very important। तौबा करेंगे तो आसमान की, तौबा जो है वो वीज़ा है आसमान की बादशाहत का। अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर तवक्को करें कि वो बेनिफिट जो उसके किंगडम के हैं वो हमें मिले, तो भूल जाओ ना। repentance is the visa for the kingdom of God because it's written in the word of God। कलाम में लिखा हुआ है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। क्यों तौबा करो? नजदीक आ रही, तो इसका मतलब है तौबा is very essential part। That means repentance is very essential for us to get into the kingdom of God। Amen? समझ आ रही कि नहीं? कि तौबा नहीं करेंगे तो बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे तो जो बादशाहत के लवाजमात है ना उनसे महरूम ही रहेंगे। शुक्रगुजारी का रवैया अपना लो, तौबा करो। अगर जिंदगी में 4 साल 10 साल पहले कोई गुनाह किया था उससे आज तक तौबा नहीं की तो आज तौबा का वक्त है, क्योंकि आपकी बहुत सारी बरकतें तौबा ना करने की वजह से रुकी हुई है। खुदा मुझे पिछले साल अक्टूबर के अंदर मैं कनाडा अमेरिका के दौरे पे था। मुझे 2 दिन सिर्फ अमेरिका में जाने का खुदा ने मौका दिया, हफ्ता इतवार, बस मंडे को मैं वहां से निकल गया। मुझे वहां पे कहती यार तू 2 दिन वास्ते आया, मैम मेरे को टाइम कोई नहीं। और जब मैं वहां पे गया तो मेरी एक मुलाकात हुई एक यंग जोड़े के साथ। काफी सालों से शादीशुदा थे वो। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके साथ बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, उनके साथ बैठा हुआ था और खुदा मुझे उनके लिए कलाम दे रहा था। और वो कलाम क्या था? एक लफ्ज। ये खुदा मेरे साथ बड़ा करता है, एक ही लफ्ज देता, बाकी वो फिर मैं कहता हूँ मैं की करा एक लफ्ज। और आप सुन के परेशान होंगे पादरी साहब, यह किधर का कलाम है? मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूं, नंबर पहले वार्निंग दे रहा हूं। आप बोलेंगे यह किधर का कलाम है? और समटाइम ऐसा होता है खुदा हमें कोई लफ्ज देता है और हम सोचते हैं कि यह किधर का कलाम है। सीरियसली। और वो लफ्ज, मैं इस नौजवान जोड़े के साथ बैठा हूं, कोई 5-6 साल से उनकी शादी हो गई हुई है। खुदा मुझे एक लफ्ज दे रहा बार 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 और मैं इग्नोर कर रहा हूं, नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि वो कलाम में से लफ्ज था ही नहीं। और वो लफ्ज पता है क्या था? अबॉर्शन। मगर खुदा क्यों जुतियां हुआड़ियां नहीं, कोई सेंस बनता है? मैंने क्या कहा था कि लफ्ज ऐसा है कि कोई तुक ही नहीं बनता उसका। लेकिन सम टाइम वो चीजें जिनका तुक हमारे साथ नहीं बनता उन लोगों के साथ जरूर बनता है जिनके लिए वो लफ्ज और वो कलाम होता है। घर में बैठे हुए थे, चाय पी रहे हैं और एक और बहन वहां मौजूद थी। मैं तंग आ गया इस लफ्ज से। फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा थोड़ा जरा ठंडा करके तो बयान करिए। मैंने एक लफ्ज अपने पास से लगा दिया। मैंने कहा बहन वो मिस कैरेज या अबॉर्शन कोई उसकी कोई आती है, कोई ज़हन में बात आती है ऐसी? कहती है नहीं 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 पादरी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। चाय खत्म हो गई, घर से बाहर निकले, उन्होंने मुझे छोड़ना था जहां मैं ठहरा हुआ था। जैसे निकले, हस्बैंड पहले निकले, फिर मैं जैसे दरवाजा बंद करके बाहर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसकी बीवी भागी हुई मेरे पास आती है और मुझे वो दोनों हाथों से पकड़ लिया उसने। बस अब जरा खड़े होंगे, इधर आओ जरा। वो भागी हुई नीचे आती है सीढ़ियों से और उसने मुझे ऐसे करके दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे कहती है भाई आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैंने बोला क्या हुआ? थैंक यू। कहती है मेरी नई नई जॉब लगी थी 4 साल पहले। खुदा ने मुझे
बेबी से नवाजा, मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने अबॉर्शन करवा लिया। मैंने कहा ओके। आपको पता है अबॉर्शन करवाने के बाद उसने खुदा से तौबा नहीं की थी। स्पिरिट ऑफ डेथ was hovering over her family, और उसके बाद से she could not conceive, वो कंसीव नहीं कर पाई। उसके बाद गाड़ी में बिठाया दोनों को, मैंने माफी मांगो। उसने माफी मांगी खुदा उनसे, रो रो के दोनों मियाँ बीवी ने माफी मांगी। उन्होंने रिपेंटेंस, माफी मांगना बहुत जरूरी है। और माफी ना मांगने की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम थे। Repentance is very important for the blessings that God wants to give us. तौबा करना बहुत ज़रूरी है उन बरक़ात के लिए जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हैं, और उनको हासिल करने के लिए तौबा करना बहुत ज़रूरी है। और तौबा का मतलब है टर्न अराउंड, यानी कि आज तौबा कर ली तो कल फिर जा कोई काम करना है। नो, तौबा का मतलब है अबाउट टर्न। मैं अक्टूबर में 3 दिन अमेरिका से वापस चला गया। 5 हफ्ते बाद मुझे मैसेज आया, भाई आई एम प्रेग्नेंट। मैंने कहा 3 महीने तक किसी ने दसी ना, 3 महीने तो बाद ला पाई। मुझे जनवरी में मैसेज आया, कॉल आ गई उनकी, हमारी बेबी की डिलीवरी है जुलाई में, आपने अमेरिका आना है, टिकट हम भेजेंगे। इतने खुश कि आपने आके बेबी को ब्लेस करना है। रिपेंटेंस, जब हम रिपेंट नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो क्या होता है कि वो बरक़ात जो खुदा हमें देना चाह रहा होता है वो हमें नहीं मिलती। किंगडम ऑफ गॉड, बादशाहत में दाखिले का वीज़ा रिपेंटेंस, तौबा। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और मैं पाकरू से गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा गुनाह जो हमने 15 साल पहले किया हो, 20 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, या 5 घंटे पहले किया हो, और आज तक हमने उसकी माफी नहीं मांगी, अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और बस संतुलन और खुदा मुझसे कहें, है पाकरू और पाकरू Holy Spirit, come in the name of Jesus. खुदावंद यीशु के नाम से अपने लोगों के दिलों पर राज कर। और अगर किसी को किसी भी चीज के लिए माफी मांगनी है, तौबा करनी है, तो अपने लोगों को याद दिलाए खुदावंद, ताकि वो रुकी हुई बरकतें, रिपेंटेंस ना की वजह से, जो माफी के ना मांगने की वजह से जो बरकतें रुकी हैं, वो बरकतें जारी खुदावंद करना चाहता है, लेकिन उससे पहले माफी का मांगना, तौबा का होना बहुत जरूरी है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। आए हम तौबा करें उन गुनाहों से जो हम बार बार करते हैं। आए वो गुनाह जो 10 साल पहले, 15 साल पहले हुए थे, वो पाकरू से कहें, पाकरू तो हमें याद दिला, ताकि आज हम उन गुनाहों की माफी मांग सकें।